कैसे जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ इट मूव्स? यस, रूल नंबर 5. रूल नंबर 5, स्टैंड अप. रूल नंबर 5 है नहीं कोई? बेटा अपना माइक ऑन करो पहले, टर्न इट ऑन, टर्न योर माइक ऑन. Yes, rule number 5 is there. Yes, beta. Rule number 6 is there. Okay. And rule number 7 is there. So, beta, can you tell me how carbon dioxide transport in our body? 20 to 25% is transported as dissolved form as carbamide. 70% is bicarbonate. And we are left with the 7%. As a dissolved. 7% as Dissolved. okay. So let me correct it. Right, you know about the 3 more. Okay. Everyone wrote down transport of carbon dioxide. Transport of carbon dioxide. So here, first is 20 to 23%. Okay. Then 70%. And then 7%. So इसको ऐसे देखो, write down. Write down. Write it like this. Yes, just give me a minute. So now 20 to 23% dissolve in plasma. So dissolve in plasma. ऐसे, ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है. देन 70%. अब 70% कैसे जाता है? हाउ इट गोज? कैसे जाता है? Yes, who can tell me how it transport? 70% मैंने आपको बता दिया. Now कैसे ये जाएगा? How it goes? बेटा आप बोल तो रहे हो लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एक जिसको आता है कम फॉरवर्ड एंड स्पीक. जिसको आता है. So 70% as bicarbonate. As bicarbonate. 70% as bicarbonate. And then 7% as, जब ये ब्लड में भी तो जाएगा, ठीक है, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन. सो इट विल फॉर्म कार्ब hemoglobin. It will move like this. Okay. So this is how carbon dioxide transport in our body. हमारी बॉडी में ये ऐसे ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. This is how it transport. Okay. Then in plasma as such, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, it forms carbonic acid as such. H2CO3. It forms carbonic acid. ठीक है. But in RBCs, ठीक है, ये इतना लिख लिया. चल इसको नोट कर लो. Then I move.
Now, in RBCs, red blood cells, what is present? An enzyme. ठीक है, उसमें अब क्या होगा? Again, water plus carbon dioxide. Now the reaction would be reversible. It forms carbonic acid. ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनेगी, लेकिन फिर क्या बनेगा इससे? बाइकार्बोनेट। भी कौन बना रहा है? एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस that is catalyzing this reaction, and this enzyme is fastest enzyme, बहुत जल्दी ये काम करता है। ठीक है, it is fastest enzyme. This is a feature of this enzyme. Now coming to this category, now hemoglobin plus carbon dioxide, it forms कार्बोमाइनोहीमोग्लोबिन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? HbCO2, HbCO2. And rest we already discussed कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में इसको डिटेल में पढ़ लिया था। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके, पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे हमने पढ़ लिया था, लेकिन डू यू नो वन थिंग? सपोज दिस इज आवर टिश्यू, ये हमारी टिश्यूज हैं। This is arterial blood. And this is venous blood. So what happened? हमारे पास let's take the quantity fix. Quantity दोनों के fix कर लेते हैं, 100 ml of blood and 100 ml of blood. ठीक है, now in arterial blood कितना ऑक्सीजन होता है per 100 ml of blood? कोई बता सकता है? I'm not talking about the partial pressure. I'm talking about the quantity of oxygen. I can see one girl is standing there. Yes, beta, do you want to tell? 5 ml. Yes, beta. 5 ml. 5 ml. Yes, ma'am. Okay, you are saying 5 ml arterial blood. You're directly coming to the answer that I'm going to ask you. But okay, so I'll tell you what is the answer. In arterial blood, we have 25 ml of oxygen. ठीक है, इसमें हमारे पास 25 ml ऑक्सीजन होती है per 100 ml of blood. But if we talk about venous blood, in venous blood we have 20 ml of oxygen per 100 ml. So now what is the difference? What is the difference in the oxygen level? कितना difference हुआ venous और arterial blood में? बताओ कितना difference हुआ? अगर यहाँ पर 25 है, वहां पर 20, कितना difference हुआ? 5. अब वो 5 कहाँ गया? 5 ml of oxygen is went where? कहाँ गई वो 5 ml? कहाँ गई? कोई बता सकता है? ये रहा हमारा आर्टेरियल ब्लड, ये रहा हमारा वेनस ब्लड। वेयर 5 ml जो ऑक्सीजन है, वेयर इट गोस? कहाँ गई? यस बेटा, यू सिट डाउन और यू वांट टू टेल मी द आंसर। यस, बताओ बेटा, कोई बता सकता है कहाँ गई वो 5 ml? हमारी जो कैपिलरीज है उसके पास यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है, टिश्यू। सो टिश्यूज में वो 5 ml ऑक्सीजन यहां से गई और वापस
जो यहाँ पर ब्लड आया ड्रेन होके उसके पास रह गया 20 ml. दैट मेक्स आवर वेनस ब्लड. क्लियर? क्लियर? तो टिश्यूज में सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ही जा रही है. गॉट इट? इज इट क्लियर बेटा? Okay, okay, that's nice. So now let's start with our assignment. ठीक है? तो कोई बता सकता है कि हमने असाइनमेंट कहाँ तक कर ली थी? Yes, कोई बच्चा? Yes? Who can tell? कितनी कर ली थी हमने असाइनमेंट? Okay, that is what I'm thinking कि मुझे आंसर आता है या नहीं आता. बच्चे प्रेजेंट थे या नहीं थे? So you were all present in that class. That's nice. So we haven't started yet, है ना? So चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इन ह्यूमंस द नॉर्मल ब्रीदिंग इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया था ये क्लास तो आई आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन. वी आर नॉट पुशिंग, है ना, पुलिंग एयर. हम पुल नहीं कर रहे, एयर को खींच नहीं रहे ब्रीदिंग के लिए. वी आर सकिंग इट. सो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? व्हाट इज द रीजन? Who can tell me the answer of first question? Yes, who can tell me the answer of this first question? In humans, the normal breathing is negative pressure breathing because. What is the reason of this? अब सारे बोलोगे कुछ नहीं समझ आएगा. It becomes noise. I need voice. चलो बताओ, कोई एक बच्चा खड़ा हुए बताए. एक बच्चा था. Any one student stand and tell the answer. Don't tell me. Yes, अब एक बच्चे का बोला तो कोई नहीं खड़ा हुआ. इकट्ठे जो सारे लगे हुए थे बोलने. बोलो जल्दी बताओ. महक इज देयर? यस बेटा खड़े हो जाओ महक. यस बेटा महक खड़े हो जाओ बेटा. यस दैट्स नाइस. हाँ जी बेटा क्या आंसर है? Yes, B option. Air is sucked in the lungs through respiratory tract due to decrease in air pressure in the lungs. तो हमने प्रेशर और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट किया था. हम सांस अंदर, ऑक्सीजन अंदर क्यों आ रही है? बिकॉज प्रेशर इज मोर आउटसाइड, है ना. प्रेशर ज्यादा बाहर है. तो ऑलवेज क्या होता है? गैस कम्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो हमारे अंदर कम है. सो फर्स्ट आंसर एवरीवन नोट डाउन. इट्स B is the correct answer. Now coming to second question, in the given diagram, the diffusion membrane is formed by. It's in your NCERT textbook also. ये वाला diagram आपकी बुक में भी है. Yes, what is the answer? Which option? B. Yes, B option. So कोई नाम बता सकते हैं इन तीनों का? Can you tell me the name of first, 2 and 3? What is the name of these three? You are right. और हमने लास्ट टाइम किया था, हमने बनाया था. We also did this. Yes. फर्स्ट का क्या नाम है? जो एल्वेओली में है, स्क्वेमस. बताओ स्क्वेमस क्या था? एपिथेलियम. बेटा ये पता होना चाहिए. सेकेंड वॉज basement membrane, and the third is squamous endothelium. Squamous endothelium. ठीक है. So now coming to third question. The diffusion membrane of alveoli and capillaries is made up of how many layers?
B. So answer is it's B. Coming to fourth question. Which of the following statements correctly explain why carbon dioxide diffuses more efficiently than oxygen across the respiratory membrane? तो अभी क्लास में किसी ने मुझे आंसर बताया था लास्ट टाइम. Yes. C, because carbon dioxide की जो solubility है, it is 20 to 25 times more than oxygen. So answer is it's C. That's nice. Coming to fifth, which factor primarily ensures the rapid exchange of oxygen from alveoli to tissues and carbon dioxide from tissues to alveoli? D. Very thin diffusion membrane and difference in partial pressure of carbon dioxide and oxygen. Now coming to six. Flow of oxygen from the environment to blood is affected by C. Osmosis. Which option, beta? A होगा because partial pressure is not mentioned here. ठीक है? So affinity of hemoglobin for oxygen, ठीक है? That determines this. So answer is A. Now coming to seventh. Now ये हमने graph किया था last time. So the graph shows that क्या show कर रहा है ये? What it is telling? Yes. Yes, A option. So in B, there is decrease in partial pressure of oxygen, increase in carbon dioxide, and increase in hydrogen concentration, means it is become more acidic. ठीक है? तो उसकी affinity decrease हो जाएगी. So answer is A. Now A. Which of the following statements correctly defines Bohr's effect? Yes. बोर इफेक्ट क्या था? जो ये कर्व हमने किया था, दैट इज बेस्ड ऑन बोर्स इफेक्ट ओनली. तो ये बोर इफेक्ट क्या बताता है? कोई लग रहा है सही आंसर? चलो, अगर नहीं पता इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, राइज इन पीएच विद एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. तो क्या होता है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं पीएच भी इंक्रीज हो रहा है, मींस इट इज गेटिंग मोर एल्कलाइन. ऐसा होता है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो क्या पीएच हमारा बेसिक होएगा? बताओ, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? अगर हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो हमारा ब्लड कैसा होगा? एसिडिक और बेसिक? कुछ नहीं समझ आ रहा बेटा जो बोल रहे हो. कोई एक दो बोलो, सारे नहीं. बताओ, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? एसिडिक होगा. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो कह रही है नहीं बेसिक होगा, तो ये करेक्ट होगी या नहीं? It's wrong. It means it's wrong. Now coming to second statement, what it is to say? Rise in pH with decrease in carbon dioxide concentration. तो ये कह रहा है pH क्या हो रहा है? It is getting decreased as carbon dioxide concentration increase. Is it correct? Is it correct? pH क्या हमारा एसिडिक होता है अगर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दें? बताओ, ब्लड का पीएच जो है डिक्रीज होएगा अगर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अमाउंट बढ़ा दें. ऐसा होगा? देख लो, अभी आपने ऊपर जो आंसर दिया उसी से रिलेटेड है. ये आप ही ने मुझे बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज देन पीएच विल इंक्रीज. ये नहीं होता. तो इसका ऑपोजिट तो यही नहीं होता. सो व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड? खुद ही स्टेटमेंट देके नेक्स्ट स्टेटमेंट में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर ये नहीं होता तो यही होगा, अगर ये नहीं होता तो ये होता, है ना? यही चीज होनी है. अब ये बताओ ये हो क्यों रही है? व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज मेकिंग आवर ब्लड एसिडिक? कोई बता सकता है?
कोई बता सकता है why increase in concentration of carbon dioxide making our blood acidic? हो क्यों रहा है ये? What is the reason? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा किस फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है? यस, इन विच फॉर्म? बाइकार्बोनेट। नाउ बाइकार्बोनेट फॉर्म में कर रहा है। बाइकार्बोनेट क्या है? What it is making? It is making प्रोटोन, उससे प्रोटोन निकल रहा है ज्यादा, एंड प्रोटोन जो ज्यादा निकलेगा वो क्या करेगा ब्लड को? जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं उतना ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। यस और नो? इन योर केमिस्ट्री यू मस्ट लर्न अबाउट दिस। यस, जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट, जितना ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन उतने ज्यादा बेसिक। ऐसे ही होता है, यही पढ़ा है अभी तक। सो प्रोटॉन ज्यादा है तो एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। और ये प्रोटॉन कब बन रहा है? जब हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जो है, ये जो कार्बोनिक एसिड है, इट ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। सो ये वाला प्रोटॉन हमारा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उतना एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। So now based on this, which option is right? B. Yes, it's B. Now moving to the 9th question. Formation of bicarbonate ions take place in RBCs only, whereas more water is available in plasma. ठीक है। Most possible reason for this fact is, इसका क्या कारण है? जबकि पानी ज्यादा प्लाज्मा में है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में ज्यादा जल्दी डिसॉल्व करती है, स्टिल इट इज मोर प्रेजेंट इन आरबीसी। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? यस, व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? फिर से सारे बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, सभी बच्चे बोलने बैठ जाते हैं। खुशदीप इज देयर? खुशदीप? यस, खुशदीप इज देयर? यस खुशदीप बेटा बताओ, जल्दी बताओ, खड़े हो जाओ। खुशदीप इज देयर और नॉट? ओके, पूरी क्लास ने मुझे बता दिया खुशदीप इज देयर, बट वेयर इज खुशदीप? खुशदीप को खुद पता है वो है? यस खुशदीप, डू यू नो यू आर हियर ओनली? यस, so beta stand up so that I also come to know that you are here. आपको पता है, क्लास को पता है, मैम को नहीं पता you are here. So please stand up. Yes, thank you. So beta, can you tell me the reason or the answer of this question, question number 9? Which option? C. Yes. So enzyme carbonic anhydrase is most active in RBCs. So that's why यहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है। That's nice. That's nice. Now coming to 10th question. बेटा हमने 10th question previous worksheet में भी कर लिया है, and I assume you can do this by yourself. ये अपने आप कर सकते हो, हमने M1 में भी ये था, ठीक है। Coming to 11th question. When man inhales air containing normal concentration of oxygen but also carbon monoxide, he suffers from suffocation because ये खासकर सर्दियों में हमें सुनने को मिलता है कि रात को जो है अंगीठी घर पे अंदर कमरे में बंद में जला के सो गए और सुबह जो है लोग मर जाते हैं सफोकेशन के कारण, ठीक है। So it is related to that scenes also. So what is the reason of this? 11th का what is the reason? Just Kaval. Yes, just Kaval, can you tell me what is the reason of this? खड़े हो जाओ बेटा। Yes, just Kaval is there ना? पहले पूरी क्लास कंफर्म करेगी, चलो बताओ, just Kaval is there? Yes. Now just Kaval ने भी कंफर्म कर दिया, he is here. चलो बताओ बेटा।
What is the answer of 11th? कि हमने सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, लेकिन उस कमरे में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा है या ज्यादा है, तो फिर उसके बावजूद कि ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हम सफोकेशन क्यों फील करते हैं, घुटन क्यों फील करते हैं? यस बेटा, विच ऑप्शन? B. Yes, hemoglobin combines with carbon monoxide instead of oxygen and product cannot dissociate क्योंकि उसकी affinity hemoglobin के साथ ज्यादा होती है as compared to oxygen. That's nice. Sit down, beta. Next, nice. Coming to 12th question. ये तो हमने लास्ट टाइम किया था और आई एक्सपेक्ट एवरीवन शुड आंसर दिस, और इसका आंसर आपने मुझे फिंगर शो करके दिखाना है कि 1 2 3 4, ठीक है? सो लेट्स गो टू देयर. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी एट मैक्सिमम कैपेसिटी? ओनली शो मी द, ऐसे बस आपके मुझे उंगलियां दिखनी चाहिए, नथिंग एल्स. ओके, सो दैट्स नाइस. यस, इट्स 4. एंड व्हाई 4? बिकॉज हीमोग्लोबिन में 4 ही आयरन होते हैं, ठीक है? कमिंग टू 13th क्वेश्चन. Which factor does not favor the binding of oxygen with hemoglobin? हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो है ऑक्सीजन के साथ कौन फेवर नहीं करता? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन और हाई टेम्परेचर. High temperature. That's nice. It's high temperature. Now coming to 14th question. The Bohr effect is related to. Bohr effect is related to. Bohr effect से हमें क्या पता चला था? दो चीजों पे वर्क करता है, ठीक है? Yes, who can tell me? Jagdeep Kaur is there. Jagdeep Kaur. Excellent. Okay. Inderveer Kaur. अच्छा, पूरी क्लास जो है मुझे भी यही बोलेगी जो बच्चा प्रेजेंट है वो भी एब्सेंट है. हाँ, राजवीर कौर इज देयर. सर नेक्स्ट टाइम में इन सबके ना आगे यहाँ पर वो बैच लगवाने पड़ेंगे, नाम के खुद ही पूछ जाते हैं कौन है. हाँ जी, राजदीप कौर. चलो बेटा आंसर बताओ 14th का. A option, decrease in oxygen affinity of hemoglobin due to increased carbon dioxide and H positive concentration. That's nice. सही है आंसर. अब किसने आप सबके आपके साथ जो डिस्कस करके आंसर का कंक्लूजन निकाला था? चलो, coming to 15th question. Which of the following will shift the oxygen dissociation curve to the right? इनमें से कौन जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट साइड को शिफ्ट करेगा? सो फॉर दिस जसनूर आ जाओ, जसनूर कौर. अच्छा, राइट साइड मतलब क्या होता है? एफिनिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? पहले तो ये पता होना चाहिए, देन यू कैन कम टू द आंसर. बताओ बेटा. इफ ऑक्सीजन कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट साइड, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? यस बेटा, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीज हो रही है. अब आंसर पे हम आ सकते हैं. चलो, दैट्स नाइस. अब बताओ क्या आंसर है? Yes, increase in H positive concentration means acidic environment होना, ठीक है? So answer is 16. That's nice.
Coming to 16th question. At the alveoli, the oxygen dissociation curve is shifted towards the left because of. अब देखो जो आंसर दिया, जो पिछला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है. So for this, कमाना रानी, कमाना कौन है? अच्छा कामना नाम है. Sorry for pronouncing it wrongly. Yes, कामना. Yes, beta. Which option? A. Yes. High partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, low H positive concentration and low temperature. That's nice. Chalo, 17. The sigmoid shape of hemoglobin oxygen dissociation curve is due to. किस वजह से होती है? ये मैंने लास्ट टाइम आपसे यही क्वेश्चन पूछा था जब सिग्मॉइड मैंने आपसे पूछा था. आई स्टार्टेड विद दिस और सबने मुझे आंसर कुछ और दिया था, पार्शियल प्रेशर एंड आई सेड नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर. So who can tell me the answer of this? What is the answer of this? B. Successive increase in hemoglobin's affinity after each oxygen molecule binds. So the correct. और इसको हम पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी भी कहते हैं. 18. अब आ जाते हैं assertion reason. Assertion. About 20 to 25% of carbon dioxide is transported in the form of carbaminohemoglobin. Is it right? Yes. So assertion is true. Let's see the reason. Carbon dioxide bind with the globin part of hemoglobin and this binding is influenced by partial pressure of oxygen. कैसा होता है? ऐसा होता है? कुछ तो होता ही होगा. रीजन आंसर बताओ. यस और नो. खुशदीप कौर. अच्छा खुशदीप हो चुके हैं ना. ओके खुशप्रीत पहले हुई थी, खुशदीप हुई थी. आई गॉट कंफ्यूज. सो इट वाज खुशप्रीत और खुशदीप जो उधर कॉर्नर में गर्ल थी. यस बेटा. खुशप्रीत तो खुशदीप आ जाओ. सेकंड जो बच गई है, जो खुश बच गई है वो आ जाए. ठीक है. खुशदीप और खुशप्रीत जो भी बच गए हैं खड़े हो जाओ. ओके चलो बेटा बताओ. रीजन इज राइट और नॉट? उल्टा होता है इसका. ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग होती है दैट डिपेंड्स अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एफिनिटी है इट इज मोर देन ऑक्सीजन. सो इट्स फॉल्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू 19th क्वेश्चन. बैठो बेटा. सिट डाउन. Assertion. Now coming to assertion. Carbonic anhydrase present in RBCs accelerate the conversion of carbon dioxide and water into carbonic acid. So what is it true or not? Yes, is it true? Yes, it's true. Coming to the reason. This reaction is important for transport of carbon dioxide as bicarbonate ions in blood. Is it true? Yes, it's important. Now coming to 20th last assertion reason है हमारा. Every 100 ml of deoxygenated blood means venous blood delivers about 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. Is it right? 5 ml होता है ना, वैसे ही रॉन्ग है. Reason. The carbon dioxide is released only in dissolved form, not as bicarbonate or carbaminohemoglobin. इसका इससे कुछ लेना देना है. It is not related to this. ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स. दोनों एक दूसरे से रिलेट भी नहीं कर रहे. अब आज जो आपको बेटा वर्कशीट मिली है दैट इज कंबाइंड वर्कशीट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. यू ऑल गॉट दिस ना? यू ऑल गॉट दिस? आपको पता है किस लिए मिली है? डू यू नो किस लिए मिली है? सॉरी क्या कह रहे बेटा? कौन बोल रहा है? थोड़ा आगे आगे बोलो. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. मैम 20
20th assertion is true. 20th assertion is true. Let's go back. Let's see. Let's go back. So every 100 ml of deoxygenated blood. पहले तो हमारे हाँ okay, it's alveoli. Okay, you're right, because it's about alveoli, it's not about the tissues. Yes, you are right बेटा. Yes, क्योंकि हम इससे पहले टिश्यू की बात कर रहे थे, so that's why you're right. It's right, correct. ठीक है, so that's also good. ठीक है, it shows me that you were present in the class. That's really good बेटा. That's nice. It's completely right. ठीक है, अच्छा. Up coming to this worksheet, you all got this worksheet. Do you know why you got this worksheet? चलो मैं बता देती हूँ. It's a surprise for you because it's a surprise test for you. So now start doing this test. It's from me to you. Surprise test. ठीक है? Because we have done both of these chapters. हमने दोनों chapter respiratory, circulatory कर लिए हैं. So it's a small test and you have only 15 minutes to complete this. I think 15 भी ज्यादा ही है. जैसे आप इतने fast हो, you can complete in 10 minutes. 10 minutes लो, खत्म करो. Excuse me, ma'am. Yes, sir. When this chapter we have finished in the class, next class should be of biomolecules, carbohydrates. Biomolecules and carbohydrate. In that we study about carbohydrate mainly. Focus on that. ठीक है sir, ठीक है. Or sir, we can do one more thing. We can link this chapter with the cell respiration in plants also. Ma'am, actually I have to start that chapter after finishing biomolecules. Okay sir, ठीक है.
क्या 5 मिनट हो गए? 5 मिनट रह गए।